ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਬੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਇਲਟਸ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲਟਸ ਮੇਨ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਅਕੈਡਮਿਕ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਇਲਟਸ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਇਲਟਸ ਸਕੋਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਆਇਲਟਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੰਪੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਕਲਟੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਲਟਸ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਮਾਰਸੇਲਾ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ, ਵੈਲਕਮ ਮਾਰਸੇਲਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ 2016 आ चुका है, किस तरह का देख रहे हो स्टूडेंट ਲਈ की नवी चीज लेके आ रहा है नवा साल? जी, पहले तो मैं आप सभी को बेस्ट विशेस देना चाहूँगा कि न्यू ईयर आ रहा है, ये आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। अगर वेस्टर्न ओवरसीज की बात करें तो हम बहुत कुछ लेके आ रहे हैं इस साल। अगर बात करें तो ये हमने मुहिम छेड़ी है, जैसे मैं वीज़ा पे तो बार बार बोलता ही आया हूँ, आज और इससे पिछले शो में भी हमने आइल्स के बारे में बोला है। तो सिंपी में हम आते रहे हैं, आपकी बार हमारे पास इंटरनेशनल फैकल्टी भी आई है क्योंकि पिछले 7-8 महीने से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो फर्स्ट टाइम इनको हमने अपॉर्चुनिटी दी है कि आप आइए, एक बार चैनल पे आइए, ताकि स्टूडेंट्स को भी पता लगे कि वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो हमारे पास आइल्स में बेस्ट फैकल्टीज हैं, इंटरनेशनल फैकल्टी है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग की स्पेशल टिप्स हैं। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, जैसे रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, वो हमारे पास ट्रेंड फैकल्टी हैं। स्पीकिंग में प्रॉब्लम आती है खासकर, या लिसनिंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा एक पंजाबी कल्चर से या हरियाणवी कल्चर से आता है, फिर वो एक इंडियन फैकल्टी से कोचिंग लेता है, उसके बाद जब वो टेस्ट देने आता है तो टोटली सब कुछ चेंज होता है, क्योंकि सपोज करो उसको फैकल्टी वहाँ पे फॉरनर मिल जाती है। तो इन सभी चीज़ों को रिमूव करने के लिए, इन चीज़ों को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास ये फैकल्टी है, ताकि हर एक स्टूडेंट इस फैकल्टी से मिले, ताकि उसकी लिसनिंग इंप्रूव हो सके और उसकी स्पीकिंग इंप्रूव हो सके। Marcella, I want to ask you one question. Our viewer also want to know about yourself. Tell us something about yourself. From where are you? From which country you belong to? Okay, as you said, my name is Marcela. I am from Colombia. I've been working with Western Overseas for the past 6 months, and I've been in India for 2 years now. How's your experience in this IELTS teacher? Experience is being amazing. Western Overseas is being the best experience for me so far when it comes to teaching. I love teaching, and here I had the chance to have a relationship with students as well, with the other faculties and with the management, and it's very good. But we are talking, Marcella, before the show that you are saying they are speaking for the students there. You are teaching how to speak English properly, ne? Yes. In IELTS. And what kind of problems students are facing from India in speaking? Okay, mostly the major problem is their mother tongue influence and their pronunciation, because Hindi or Punjabi or whatsoever the language they speak, it's very strong. So they come with these strong sounds that they are not there in English. So we try to always give them tips and have activities with them so that they improve in this. ਸਿੰਪੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਆਇਲਟਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਸੇਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਪੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਕਸੈਂਟ ਕੈਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਿਪਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲम्स ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਦੇ हैं बच्चे? सर टिपिकली ये प्रॉब्लम्स तो है ही है, एक्सेंट की प्रॉब्लम है, उनके पास मदर टंग का प्रॉब्लम है, पर उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को ग्रामर में भी प्रॉब्लम है, स्टूडेंट को प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है, स्टूडेंट को वोकैबुलरी चाहिए और कौन सा वोकैबुलरी वर्ड कहाँ पर यूज़ करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए ही हमारे पास जो एक पूरा टीम है सारे, जिसमें एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं, वो सभी ट्रेनर्स मिलकर एक स्टूडेंट का ओवरऑल बैंड स्कोर इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करते हैं, चाहे वो रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग और स्पीकिंग।
ਮਾਰਸੇਲਾ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸੈਂਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ, बट स्टूडेंट में एडवांटेज की देख रहे हो उस चीज़ की? सर स्टूडेंट को एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब वो क्लास में है हमारे पास तो उसको उस एसेंट के साथ एक फेमिलाइजेशन मिलती है, उसको अपना पंजाबी और हरियाणवी जो एक्सेंट है उससे हटकर एक फॉरेन एक्सेंट सुनने को मिलता है, क्योंकि वो लिसनिंग में भी उसको बहुत हेल्प करता है। और स्पीकिंग में तो डेफिनेटली जब उसको कहीं ना कहीं फॉरेनर फैकल्टी आ जाता है उसके फेस करना पड़ता है, तो यहाँ पर ये सब एडवांटेज उसको रहते ही है मार्सेला के। और इसी का रिजल्ट भी है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्कोर 9 बैंड आता है लिसनिंग में, स्पीकिंग में, ओवरऑल स्टूडेंट्स का बैंड स्कोर बहुत अच्छा आता है, तो ये सब बेनिफिट ही है। Marcella, all the students coming who are coming to Western overseas for the IELTS, they catch up your their accent properly, or they face a problem in the beginning? They don't face a problem as such. At the beginning, yes, it is a little bit difficult for them because it's a different accent. They are not used to it. However, with the time, it's a matter of few days just to get it. With the time, they feel very comfortable. They always try to improve in their accent. You can feel that they are actually changing or they are actually improving in that mother tongue problem that they have. So it's very, very good that they... The students are coming to you for the IELTS. They are only coming for learn English, or only want to pass the exam of IELTS here? Or they have interest in to learn a new language here? No, we have students like basically their aim is to go abroad and go for their higher studies, right? And they obviously what they want is to get a high score in their IELTS. However, we don't only provide with tips so that they learn. It's a matter of establishing a good relationship with them, because it starts from there. If you have a good relationship with the student, then obviously they're gonna catch everything easily. Simply same solve the develop student ਦਾ ਅੱਜ motive ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਨਵੀਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ 10th +2 ਤੱਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਭ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੈਬਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਫਲੂਐਂਸੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਈਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਇਲਸ करना ਪੈਣਾ है? नहीं सर, दोनों चीजें इंटरलिंक्ड है, आप दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हो। अगर आप आइल्स में स्कोर अच्छा लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपका लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके पास लैंग्वेज के स्किल्स होने चाहिए। उसी को देखते हुए हम लोग स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में ऐसे ही कुछ टिप्स और स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स को देते हैं। नहीं, मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆਇਲਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, 5.5 6 ਜਾਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਆਇਆ कि एक इंटरेस्ट नाल आया सीखण, दोनों च बेटर केड़ा रहेगा? सर बेटर तो ऑब्वियसली वही रहेगा जिसमें स्टूडेंट एक इंटरेस्ट के साथ आया है, स्टूडेंट का डेफिनेटली एक पैशन है अपने ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, तो स्कोर तो उसी में अच्छा आ पाएगा। लेकिन जो आप दूसरी चीज कह रहे हो वो भी बिल्कुल इंटरलिंक्ड है सर। अगर आप एक लैंग्वेज में इंटरेस्ट के साथ उसके मॉड्यूल्स को पढ़ ही नहीं रहे हो, आप नहीं इंप्रूव कर सकते सर। सिर्फ राइटिंग में मैंने हमेशा अपने हर शो में बताया स्टूडेंट्स को कि बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जिसके ऊपर स्टूडेंट को वर्क करना चाहिए। जैसे हम स्पीकिंग में रहते हैं ना कि मदर टंग इन्फ्लुएंस पे काम करना है, एक्सेंट पे काम करना है, उसी तरह से राइटिंग में भी स्टूडेंट्स को बहुत सारा काम करना पड़ता है। उसको टीएस भी सीखना पड़ता है, टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी, उसको ग्रामर इंप्रूव करना पड़ता है। तो ये सब चीजें तभी आएंगी जब उसका लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, वो जितनी डीपली जाएगा, जितनी डीपली जाकर लैंग्वेज को सीखेगा, उसका ओवरऑल स्कोर उतना ही ज्यादा बेटर होगा जी। सो लैंग्वेज ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਇਲਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਕਲਟੀ ਮਾਰਸੇਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਇਲਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਪੀ ਜੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਘੱਟ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਯੂਰਪ, ਸ਼ੈਨਗਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ? देखो सर, 2-3 बातें हैं।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में ना एडवर्टीजमेंट एक बड़ा रोल पैदा कर रही है कि भाई हर एक बंदे ने अपनी दुकान खोल के बैठे हैं कि भाई वो आइल्स करा रहे हैं, ठीक है। चाहे उनके पास फैकल्टी, किसी ने कोई स्टूडेंट था उसके 5-6 बैंड आ गए, 6 बैंड आ गए, 6.5 बैंड आ गए, उसी को फैकल्टी रख लेते हैं। IDP और ब्रिटिश काउंसिल की कभी मीटिंग में नहीं गए, कभी टीचर ट्रेन प्रोग्राम नहीं लिया, तो इस तरह से वो एड के सारे पैसे के सारे स्टूडेंट्स को खींच लेते हैं। अगर आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं लोगे, मैं ये नहीं कहता वेस्टर्न ओवरसीज ही बेस्ट है, और भी इंस्टीट्यूट्स होंगे, लेकिन जब तक एक अच्छा इंस्टीट्यूट, एक अच्छा टीचर्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, बच्चे का टारगेट अचीव नहीं होगा। बच्चा कनाडा का सपना देखता है, बच्चा अमेरिका का सपना देखता है, बच्चा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का देखता है। आज की डेट में हर एक एम्बेसी टाइट हो गई है, 5.5 बैंड को कुछ भी नहीं मानती, ठीक है। जैसे ओवरऑल मार्क्स बच्चे के आने जरूरी हैं, उसकी 10th और 12th या बैचलर्स में, उसी हिसाब से आईएलटीएस में एक अच्छा स्कोर आना भी जरूरी है। अगर बच्चे के 6 बैंड, 6.5 बैंड, 7 बैंड, 8 बैंड नहीं आते हैं, तो एम्बेसी आज की डेट में ऐसे स्टूडेंट्स को रिजेक्शन भी दे रही है। मैं ये नहीं कहता 5.5 का वीजा नहीं आएगा, बट आज की डेट में जाने वाले ज्यादा हैं, कंट्रीज कुछ सिलेक्टेड है, ठीक है। तो एम्बेसी यही देखती है, उनके सामने एक 8 बैंड वाला बच्चा बैठा है, एक 5.6 बैंड वाला बच्चा बैठा है, तो वीजा किसको देगी एम्बेसी? वही देखेगी ना कि इसका वेटेज ज्यादा है 8 बैंड वाले का। तो बच्चे के 8 बैंड, 8.5 बैंड, 9 बैंड तभी आप पाएंगे जब एक अच्छा इंस्टीट्यूट होगा, एक अच्छा टीचर होगा। वो टीचर्स जो रियली में बच्चे के पैसे के साथ जस्टिफाई करें, बच्चे के करियर के साथ जस्टिफाई करें। एक बच्चे ने 5 बार आईएलटीएस किया, उसका स्कोर 6.5 बैंड आएगा, वो मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं एक बच्चा पहली बार इंस्टीट्यूट में आए, उतना अच्छा स्कोर करे, उसको 9 बैंड की परफेक्ट प्रिपरेशन मिले, ताकि उसका स्कोर पहली बार में ही आए। एज यू नो, आज की डेट में प्रॉब्लम आ रही है कि आईएलटीएस में 3-3 महीने तक डेट नहीं मिल रही है। अगर आप इस तरह से इसको खेल बना लोगे कि पहले किसी और इंस्टीट्यूट में लिया, लोकल में ले लिया, चलो फिर देखते हैं चंडीगढ़ वेस्टर्न में आ गए, तो भैया अपने टाइम के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आज की डेट में एम्बेसी इतनी टाइट है, वो देखते हैं कि गैप तो नहीं आ गया आपका। अगर गैप आया तो उस गैप में आपने क्या किया। अगर एसओपी में ये लिखते हो मैंने 3 बार या 4 बार आईएलटीएस किया, तो वो आपको वीजा नहीं देंगी। बहुत कम चांसेस हो जाते हैं सर, मैं ये नहीं कहता वीजा नहीं आएगा। अगेन बोलना चाहूँ, वहां पे प्रॉब्लम्स आनी है। वो बोलते हैं जब तू इंग्लिश से इंप्रूव पहली बार नहीं कर पा रहा है, दूसरी बार नहीं कर पा रहा है, 4-4 बार देख के तू टेस्ट देके 6 या 6.5 बैंड ले रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने वीजा की वेटेज को कम कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो आज की डेट में कंसीडर करती हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, एक अच्छा टीचर, एक अच्छी फैकल्टी, एक अच्छा इंस्टीट्यूट आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि पहली बार ही 6 लगे। बिल्कुल। साडे स्टूडेंट्स जिन्हां दी असीं गल करदे हां, +2 वाले दी गल करी जिन्हां ने हुण पास आउट कीता या करनगे, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स असीं देखदे हां भी शुरू तो इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम द स्टार्ट। जदों एडमिशन लैंदे ने स्कूल दे विच, चाहे नर्सरी दी है या किते भी, ABC शुरू तो पढ़ते हैं, बट प्रॉपरली बोल नहीं पाते, कितने कमियां रह जांदियां। सो मार्शल तो पूछना चाहूँगा, मार्शल, इन इंडिया स्टूडेंट स्टार्ट्स इंग्लिश फ्रॉम व्हेन दे टेक एडमिशन इन अ स्कूल। From that time they are speaking and learning and studying English properly there. Why they are not able to speak or do good things in English or get a good communication skills? Where the problems is? Basically, the problem is that they don't practice enough, because they are in school for let's say 8 hours, but out of those 8 hours, do they speak really English for 8 hours, and then they go home, and do they speak at home English? I believe they go home and they talk to their parents and to their friends in their own language, right? Because they feel more comfortable. So I think it's a matter of practice, and they need to force themselves to think in English all the time. In that way, it will be the process of the communication and like transforming your ideas from another language to English. It would be easier if you are thinking English all the time. Simply, but इत्थे मेन प्रॉब्लम ये आउंदी है हुण स्टूडेंट ठीक है 8 घंटे इंग्लिश बोलदा, घर जाके नहीं बोलदा, क्योंकि मदर टंग दी एक जिहड़ी है अपने किते ना किते प्रॉब्लम आउंदी, क्योंकि अपनी पंजाबी या हिंदी मदर टंग किते ना किते आ जाती है ना। हरियाणा च हिंदी ज़्यादा बोली जाती, पंजाब च पंजाबी है। उत्थे जाके स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करता है इंग्लिश दे विच। प्रैक्टिस कितनी कुछ जरूरी है जो आईएलटीएस करन आ जाता बच्चा, किवें करनी चाहिए है, तो उसके एडवांटेजेस की ने? सर, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू प्रैक्टिस। कैंडिडेट को प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, तभी उसका बैंड स्कोर इंप्रूव होगा। बिल्कुल सही बोला मार्सेला ने भी कि इफ यू आर गोइंग टू बी स्पीक ओनली फॉर 5 आवर्स और ओनली फॉर द 6 आवर्स, आप नहीं इंप्रूव कर सकते। अगर आपको रियली 8-9 बैंड चाहिए, तो आपको जितना ज्यादा हो सके आपको स्पीक मतलब अपना जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही यूज करना चाहिए, ताकि आपका बैंड स्कोर भी इंप्रूव हो सके और ओवरऑल आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल भी रेज हो सके, बिकॉज कॉन्फिडेंस भी आएगा। और जितना ज्यादा आप इंग्लिश बोलेंगे, आपके पास उतने नए नए वर्ड्स आएंगे, आपके पास उतने नए सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आएंगे, आपका वोकैबुलरी वास्ट होगा,
और सबसे बड़ी बात, आपकी टंग को एक यूजेज करने की हैबिट डलेगी, और यही सब चीजें हैं जो एक स्टूडेंट को प्रैक्टिस के साथ ही आ सकती हैं। ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ 7.5 8 ਬੈਂਡ 8.5 ਬੈਂਡ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ परफॉर्म करता है एग्जामिनेशन दे विच उत्थे इन्ना वधिया परफॉर्मेंस नहीं आउंदी, उत्थे 5.5-6 बैंड तक रह जाता है। की कमियां रह जांदी उदों? सर ऐसा है, इसके लिए होता है, ये जेन्युइन क्राइटेरिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, बट हमारे इंस्टीट्यूट में इस तरह की चीजें नहीं हो पाती। रीजन क्या है, हम लोग डेली एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस शीट है हमारे पास, हम स्टूडेंट का डेली जितना भी उसका परफॉर्मेंस आता है रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, उसका स्कोर एवल्यूट करते हैं। एवरी सैटरडे हम जो मॉक टेस्ट लेते हैं वो एक सिंपल मॉक टेस्ट नहीं होता, हम बिल्कुल रियल एनवायरनमेंट देते हैं कैंडिडेट को जो एग्जाम में होता है। जैसे वहां रजिस्ट्रेशन होगा पहले, जैसे वहां पर काउंटडाउन चलता है, जैसे वहां पर इन्विजिलेटर्स होते हैं, बिल्कुल सेम वही पैटर्न हम यहाँ फॉलो करते हैं। उसके बाद जब हम स्पीकिंग लेते हैं, क्योंकि मेजरली स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आता है वो स्पीकिंग में आता है, रीडिंग राइटिंग और जब हमारा लिसनिंग होता है तब तो वहां कोई ट्रेनर होता ही नहीं है, तो वहां पर तो इन्विजिलेटर्स होते हैं, उनसे डर नहीं लगता स्टूडेंट को। स्टूडेंट को डर लगता है स्पीकिंग के टाइम पर, क्योंकि वहां पर उसको एक नया चेहरा मिलता है, कई बार वो इंडियन होते हैं और कई बार वो फॉरेनर्स भी होते हैं। तो सेम उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैबिन्स हैं जिसमें हम लोग स्पीकिंग लेते हैं कैंडिडेट की, और हमारे पास बहुत सारे ट्रेनर्स हैं स्पीकिंग के, और वो कैंडिडेट जो है बार बार नए नए ट्रेनर को फेस करता है। एक ही ट्रेनर के साथ स्टूडेंट हैबिचुअल हो जाता है, उसको लगता है इस ट्रेनर के सामने तो मैं बोल ही लूंगा। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है जिसमें हम स्पीकिंग डेफिनेटली चेंज करवा के लेते हैं। प्लस मार्सेला है, मार्सेला एक फॉरेन फैकल्टी जो वहां पर जो स्टूडेंट को नर्वसनेस होती है और जो स्टूडेंट वहां पे कॉन्फिडेंस खो देता है, वो सब चीजें जनरेट भी करवाते हैं हम। तो ये सब चीजें ही हैं जो वेस्टर्न ओवरसीज को दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग बनाती हैं और स्टूडेंट्स का बैंड स्कोर आता है। What I am asking her is that when the student is in your institute, they are giving a mock test every week there. They perform very well. Most of the institutes there, most of the student, but the number of student we are asking for, they perform very well in mock test. But when they are going to give an examination of IELTS, they can't perform very well in speaking or another module. What's the reason behind that? What's the problem they are facing in the examination there? I believe it's nervousness, because they feel very comfortable in their institutes, because they have their teachers all the time that are out Because there they are used to the environment there. No? Exactly. Yeah. So, for example, in our institute is very good because they only have the chance to speak with me in English. Even though I understand a little bit of Hindi, I always try to communicate with them in English. In that way, when they go for the exam, then they will be familiar with the accent, they will be familiar with the language, and they will not feel that nervous. But they feel familiar with the martial art, not with that faculty where they are sitting in the examination and they become nervous there. No, but I think it's just a matter of understanding that the other person will only communicate with you in English, even if it's Marcela or it's another person. This time on the television, I was sitting in a home. I think what I can see, number of students are watching you. What are the tips for the speaking, for the good speaking you want to tell the students here? Okay, so in order to improve their fluency, what we suggest our students is to always speak at a normal speed or a slow speed. In that way they don't get confused and they don't get too many ideas in their head, and they start with the fillers and they start this is very common, right, because they don't have enough ideas. So it's always good to be fluent, to speak at a normal speed. Okay, in order to generate stories or to generate ideas in order to generate stories, they need to come with enough ideas. If they have enough ideas, then they will have enough things to say or to build a story or to speak in whatsoever the topic is it's given. Okay, for the pronunciation, the first thing that they need to know is that you know the correct spelling of the word, you will pronunciate the word correctly. So for that matter, they need to learn, or they need to be aware that there are some letters that don't sound or that are mute, and there are some letters that sound different in one idiom or in one language than in another. So they need to be aware of these things. They need to be aware of the sound of the vowels. For example, in Hindi or in Punjabi, they might sound different than in English, right? So
And for the grammar, they need to learn about how to build the structure of a sentence. So if from the beginning they know how to do that, once they start speaking, they will not have a problem. They're speaking in any tense, for example. सो इत्थे कुछ चीज़ां मार्शल वालों जो साझे की भी स्टूडेंट्स मेन प्रॉब्लम्स क्यों फेस कर रहा है ਉਹਦਾ हल की है जो कुछ नहीं समझ आया तो वैसटर्न ओवरसीज़ तक इन्हां दा राबता कायम किया जा सकता मार्शल उत्थे स्पीकिंग दा प्रॉपरली क्लासेस लैंदियां ने जिहदे च एक्सेंट प्रॉब्लम नहीं आउंदी सिंपली जी उत्थे प्रॉपरली अकैडमिक डायरैक्टर वजों काम कर रहे हैं जिहड़े ऑल ओवर सारा कुछ तुहानूं हैल्प करदे ने चाहे वो किसी भी मॉड्यूल दे विच तुहानूं हैल्प चाहिदी है प्रदीप जी खुद उत्थे रहिंदे ने स्टूडेंट वीज़ा संबंधी कोई हैल्प चाहिए तो वैसटर्न ओवरसीज़ तक राबता कायम किया जा सकता सो आइल्स तो इसलिए गल कर रहे हैं क्योंकि बेस वो है जो फाउंडेशन एक बेस नीहां मजबूत होणगियां तो बिल्डिंग एक मजबूत खड़ी होने की असीं उम्मीद कर सकते हैं सो सिंपल जी जिवें कुछ पॉइंट्स जिवें शेयर किए मार्शल ने भी ये चीज़ां मेन ने ये चीज़ां वल ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट नूं चाहे वो प्रैक्टिस नूं लैके गल कीती है ग्रामर नूं गल कीती है या होर जिहड़ियां चीज़ां साझियां कीतियां ने उस तो इलावा किहड़ियां चीज़ां जिहड़ी दसना चाहुंदे हो सर स्पीकिंग में तो जो मार्सेला ने कहा डेफिनेटली ये सब चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। उसके अलावा रीडिंग की बात करें तो रीडिंग की अपनी स्ट्रैटेजीज हैं जिस पर स्टूडेंट को वर्क करना चाहिए। स्टूडेंट को सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रीडिंग में आता है दैट इज टाइम मैनेजमेंट। उसको लगता ही नहीं है कि मैं 1 घंटे में 60 विद इन 60 मिनट्स वो 40 क्वेश्चंस कवर कर पाता है। तो वहां पे हम स्टूडेंट्स को यही सजेशन देते हैं कि आपको स्कैनिंग और स्किमिंग करना चाहिए। बट स्कैनिंग और स्किमिंग कहने में दोनों वर्ड्स बहुत आसान लगते हैं बट हर क्वेश्चन पे ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से करना है। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हो तो भी स्कैनिंग डिफरेंट है, उसके लिए डिफरेंट स्किमिंग होती है। तो ये सब चीजें स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए कि वो कैसे अपना बैंड स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं, 60 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस इफेक्टिवली किस तरह के उसके आंसर्स दे सकते हैं और वो करेक्ट फॉर्मेट में भी हो। क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स का रहता है कि अटेम्प्टेशन रेशियो की तरफ जाते हैं और करेक्शन नहीं हो पाता। तो हम स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि अटेम्प्ट करना तो जरूरी है बिकॉज कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है रीडिंग में। आपका कोई भी आंसर आप खाली मत छोड़िए, नेवर लीव एनी आंसर टू बी ब्लैंक। आप आंसर जरूर लिखिए चाहे आपको लास्ट में गेस क्यों ना करना पड़े, बट उससे पहले भी आपको साथ साथ करेक्शन रेशियो पे भी ध्यान देना चाहिए कि आप अपने आंसर्स को कैसे बहुत ज्यादा करेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज रीडिंग के आंसर्स आपको रीडिंग में वहीं पर अवेलेबल हैं, आप वहीं से आपको पैसेज में से ही निकालने हैं। बट जो स्टूडेंट्स ये करते हैं कि पैसेज को पढ़ना पूरा और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करना इनटू देयर ओन मदर लैंग्वेज और इनटू देयर नेटिव लैंग्वेज, वो गलत हो जाता है। तो स्टूडेंट को स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी चाहिए और स्ट्रैटेजी के लिए ही हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में डेली डेमो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। स्ट्रैटेजी बिल्कुल चाहिए इस चीज़ की, बिल्कुल ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ डिफरेंट देखते हो वैसटर्न ओवरसीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟੀट्यूट्स ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ पढ़ा रहे हैं? सर यही चीजें हमारे जो टिप्स और स्ट्रैटेजीज हैं वो डेफिनेटली हर इंस्टीट्यूट से सेपरेट है। हम कुछ आइल्स तो सेम है, देखो सब आइल्स वही करवा रहे हैं, मॉड्यूल सेम है, सब कुछ वही हाँ बिल्कुल सही प्रदीप सर वाली बात, लेकिन हम लोग उसी को फॉलो करते हैं अपने इंस्टीट्यूट में भी। हमारा एक एक ट्रेनर एक एक स्टूडेंट उसी चीज को फॉलो करता है। दैट विनर्स आर नॉट डूइंग डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। Marcella, same question to you. What is the different in Western Overseas Institute different from the other institute they are teaching teaching IELTS there? We have personalized teaching for students or personalized training whenever they have any kind of doubt. We always sit with them and explain them whatever is their doubt. We cover every module twice a day. We have a movie day on Fridays and we have a discussion based on that. We have group discussions. We have different kind of activities all the time. We have master classes twice a week and they have me. Okay, and how feedback you are getting from the students? The feedback is been actually very fruitful. I never expected that, and I wish I could spend more time with them and give them more attention, but we have like a big amount of students, so it's a little bit difficult to take care of Only each of them. feedback is fruitful, or students also getting a result fruitful from the Marcella? No, they also are getting very good results. We have students scoring 8 and 8.5, 9 band in PTE. That's very good. That's very good. ਸੋ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਆਇਲਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਚੰਗੇ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। Hello friends, this is Manjot Singh from Ambala. I got 7.5 bands overall score with scoring 8.5 bands in listening, 7.5 in reading, 6.5 in writing and 8 bands in speaking module. I feel Western Overseas is one of the best educational institute which is providing IELTS education. The teachers here are very helpful and top qualified teachers. They provide help not only to the class but also individually. We can opt for extra classes that are very helpful, and moreover we have master classes. We have smart classes every alternative day which are very helpful for the students. So I prefer Western Overseas, and it's not only best in Ambala but also in other branches like Chandigarh, Kurukshetra, Sonipat, and I think that Western Overseas abroad is one of the best IELTS education institutes. Thank you. Hi, good morning. I'm Mandeep Kaur Chahal from Barnala. सो लास्ट मंथ मैंने आइल्स बूट कैम्प ज्वाइन किया था वेस्टर्न ओवरसीज़ में, जिसमें क्या था कि आपको एक फ्री स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं फॉर 1 मंथ फॉर आइल्स कोचिंग। तो मैं वहाँ उसके लिए सिलेक्ट होगी और मैंने 1 मंथ यहाँ पे लगाया, अपनी आइल्स की कोचिंग ली एंड आई स्कोर्ड ओवरऑल 7.5 बैंड्स। इसके लिए मैं सभी स्टाफ मेंबर, फैकल्टी एंड स्पेशली प्रदीप सर का बहुत थैंक्स करती हूँ, क्योंकि जो उन्होंने मुझे टिप्स एंड टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज दी वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुई। और अभी मैं अपनी फाइल प्रोसेस कर रही हूँ वेस्टर्न ओवरसीज से फॉर कैनेडा। सो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Ramjot Singh, and I am from Ambala city. I got band score overall 7 and 8 in listening, 7 in reading, 6 in writing and again 6 in speaking, and I am very satisfied from my IELTS result. And Western Overseas is the best institution providing IELTS coaching in Ambala, Kurukshetra, Chandigarh and Panipat, and all the teachers are very cooperative, and one can become familiar in this institution and provide the best education regarding IELTS. ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈਏ। ਥੈਂਕਸ ਮਾਰਸੇਲਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੈਲਿਊਬਲ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।